कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव, आईडी नंबर 26996 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर. Indoine Business Group, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoinegroup.com. हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन श्रीवास्तव आज का शो मैं होस्ट करने वाला हूं और ये बहुत ही ऐतिहासिक शो होने वाला है। इसमें जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने पंतनगर के बनने से पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया था और आज भी वो पंतनगर में ही रहते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं उनके बारे में। आपका पंतनगर आना उस समय हुआ जब वीसी ऑफिस हल्दी में ही होता था। पंतनगर को फूलबाग के नाम से जाना जाता था और एग्रीकल्चर कॉलेज के मात्र 9 कमरे ही बने हुए थे। और हाँ, आप पंतनगर की उस ऐतिहासिक मर्सिडीज बस में बैठकर फर्स्ट बैच को रिसीव करने भी गए थे। आप पंतनगर के पहले कुलपति श्री के.पी. स्टीवेंसन के ओएसडी रहे हैं। उसी क्रम में आपने डॉक्टर डी.पी. सिंह के ओएसडी के रूप में पंतनगर को हरित क्रांति की जननी बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप डीन पीजी के ओएसडी तथा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं। आपका खेलों के प्रति विशेष रुझान रहा है और आपके मित्रों में शामिल हैं के.डी. सिंह बाबूजी एवं आज के स्टार सुरेश रैना। 1995 में रिटायरमेंट के बाद से आज तक आप न जाने कितने प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और अन्य पंतनगरियंस के गाइड, मेंटर और शाइनिंग स्टार बने हैं। मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आज का एपिसोड मात्र एपिसोड नहीं है, आप पंतनगर से स्वयं रूबरू होंगे। तो दोस्तों, तालियों से स्वागत करें। प्लीज वेलकम श्री के.सी. तिवारी जी का। वेलकम टू द शो सर। आज मैं लकी हूं कि मैं उनको होस्ट कर रहा हूं जिन्होंने पंतनगर के फर्स्ट बैच को रिसीव किया और यूनिवर्सिटी के गोल्डन डेज के किरदार बने। तो सर, शुरुआत करते हैं। अगर आपसे हम जानना चाहें कि आपकी जर्नी कहां से शुरू होती है और पंतनगर कैसे आना हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? और हाँ, आप आज जो भी कहेंगे ऐसा लगेगा कि स्वयं पंतनगर ही बोल रहा हो। प्लीज सर। I want to inform you that I came to Pantnagar in 1958 when it was Tarai State Farm and my uncle was working under Major Sandhu, who was the general manager of the farm. It was a big forest. The farm was 16,000 acres, the biggest farm of Asia. And not only India, but Asia. I stayed here for a week and then I ran away to Lucknow, which is my birthplace. I was working in UP Sachivalaya since 1956. I was there for 4 years and the then Agriculture Secretary, Mr. Stevenson, K.A.P. Stevenson, who became Vice Chancellor of this university, asked me, Tiwari, I can give you a better job, but you have to join immediately. I am first Vice Chancellor of Pantnagar, and if you want to come, you can come. This is the time when I met him in Nainital in Boathouse Club. He gave me the appointment letter within 2 days and I left Nainital to Lucknow and I came back in 2 days to Pantnagar to take my new assignment. Before joining this university, I worked in UP Civil Secretariat, Sachivalaya, Lucknow for 4 years. I was in Agriculture Department with Shri A.N. Jha, ICS, and
K.A.P. Stevenson, the first Secretary Agriculture. Then he became the Vice Chancellor of this university. I was appointed as OHT to Vice Chancellor, and I worked with many Vice Chancellors like Raja Bhadri, Dhyanpal Singh, Anand Swaroop, and many others. And I had good time with all the Vice Chancellors. The first 4 years went very soundly with the Vice Chancellor because the Vice Chancellor was mixing with the students. He knew about the difficulties of the students. He used to eat with the students in cafeteria sometime. And he was a sportsman and he was very friendly with the faculties. And of course, he was from UP government, so there was no difficulty of funds. And he went very strong, and the university in 4 years, it had 1,000 students. First year, 250, and we had 2 faculties only, College of College of Agriculture, College of Veterinary Sciences. There were American advisors, Lambert, Dr. Webb, Dr. Ray, Dr. Bay, Dr. Price, Dr. Thompson, and many others who came from USAID to get the development of this university. Now, students of first batch, Dr. Harpal Singh, Dr. G.K. Garg, Dr. Amresh Kumar, Dr. Lakchora, Dr. Ramkeval Tripathi, and many other students. They did so good. At this juncture, these students, some of them became dean, some of them became directors, some of them went to the bank, some of them were IAS officers, and they did very good. They put the name of this university at the top. जब पहली बार यहाँ आना हुआ तो पहले विचार क्या थे? जैसे हम कभी भी कहीं भी जाते हैं किसी नई जगह, तो सबसे पहले हमारे मन में कुछ स्ट्राइक करता है उस जगह के बारे में, एक परसेप्शन बनता है पहली नज़र से। तो वो क्या परसेप्शन रहा होगा सर जब आप पहली बार यहाँ आए होंगे? जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैंने ठान ली कि मैं पंतनगर जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टीवेंसन साहब से प्रॉमिस किया था। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि यूपी गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हो गए, तुम यही नौकरी करो। लेकिन मैं सब को छोड़ के मैंने स्टीवेंसन साहब से वादा किया था कि मैं आऊँगा, और एक उसमें थोड़ा स्वार्थ भी था। लखनऊ में मुझे 132 रुपये मिलते थे और यहाँ पे मुझे 200 रुपये देने को कहा। एक स्वार्थ भी था, इसमें कहने में घबराने की बात नहीं। दूसरा, जब मैं यहाँ आया पहले दिन तो मैं घबरा गया, लेकिन मेरे ताऊजी थे, वो यहाँ मेजर संधू के साथ थे, उसके बाद फिर फार्म में थे, तो उन्होंने समझाया और मैंने उनसे कहा और मैंने ठान ली कि मैं इस कृषि विश्वविद्यालय में आदमी पहली बार आया हूँ और शुरू होने के पहले आया हूँ। यहाँ शुरू होने के पहले वाइस चांसलर साहब हल्दी में बैठते थे। हम लोगों ने एग्रीकल्चर कॉलेज में पहले बैच को एग्रीकल्चर कॉलेज से हम लोग रिसीव करने गए थे। एक यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी बस हम लोगों ने मंगाई थी। हम नगला स्टेशन था ही नहीं, सब ट्रेनें लालकुआं में रुकती थी। हम लोग लालकुआं लेके, जिसमें कुलपति महोदय, उस समय उप कुलपति, वाइस चांसलर को उप कुलपति कहते थे। कुलपति कोई यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं होता था, उप कुलपति गवर्नर को कहा जाता था। तो हम लोग नगला
था नहीं, तो हम लोग लाल कुएं से अपना बच्चों को लेके आए और उनको हॉस्टल में ठहराया। हमें बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि हमको लगा कि हम एक परिवार में रह रहे हैं। जितने भी बच्चे आए हैं वो शाम को इकट्ठा होते थे। हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि खेलते थे। जहाँ आज होम साइंस कॉलेज बना है, ये हमारा प्लेइंग ग्राउंड था। और बच्चे लोग दूर दूर से, हिंदुस्तान के कोने से बच्चे आते थे। कोई ये नहीं था कि यहाँ के लिए 75% रिजर्वेशन। यहाँ पे थाईलैंड से, श्रीलंका से, नेपाल से, इथोपिया से, यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ये विद्या के मंदिर को, जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, इसको सबने बहुत ही दिल लगा के, मुसीबतों के साथ रह के भी, क्योंकि यहाँ पे रहने को हॉस्टल था, मच्छर बहुत थे, कीचड़ हो जाता था, रोडें पक्की नहीं थी, इसलिए शुरुआत में मुश्किल हुई। लेकिन हम लोगों ने सबने प्रण किया। यहाँ के कुलपति, अधिष्ठाता, यहाँ के प्राध्यापक, जो कि हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशों से भी, अमेरिकन एडवाइजर्स, वो सब 1960 में यहाँ पे थे और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की पूरी ताकत झोंक दी। सर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जो भी आपकी अर्ली एजुकेशन रही है, एवं उस समय की जो लाइफ रही आपकी, उसके बारे में कुछ बताएं सर। हमारे पिताजी ने शुरू में मुझे प्राइमरी स्कूल में भेजा, लेकिन जब वहाँ पे अंग्रेजों का ज़माना, ये मैं 1943 की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों का ज़माना, खुले में टाट पे बैठना, सामने ब्लैक बोर्ड और एक अध्यापक। तो 2 दिन के बाद हमने स्कूल जाना बंद कर दिया। पिताजी ने कहा, क्यों स्कूल नहीं गए? हमने कहा, हम ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमको पिताजी ने कॉलोनी तालुकेदार कॉलेज में एडमिशन दिलाया, और जो लखनऊ का एक माना हुआ स्कूल है, और वहाँ प्रिंसिपल अंसारी साहब थे, आज मुझे याद आ रहा है। और वहाँ इंटरमीडिएट तक मैं रहा। मेरे साथी हरिकृष्ण शास्त्री, लाल बहादुर जी के लड़के, जितेंद्र प्रसाद जी, विनोद मेहता, अशोक क्वाट्रा, ये सब लोग थे। तो स्कूल में बड़े आनंद से रहे। उसके बाद मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। मैंने हिंदुस्तान के अच्छे क्रिकेटरों में, जैसे मुश्ताक अली, विनू मरकत, सुभाष गुप्ते, दत्तू फतकर, इनको खेलते हुए देखा और इनके साथ भी खेला। मैंने नेशनल टूर्नामेंट, शीशबल टूर्नामेंट वगैरह में, लखनऊ में बाबू स्टेडियम में, के.डी. सिंह बाबू हमारे बहुत ही अच्छे बड़े भाई की तरह थे। के.डी. सिंह बाबू, जिनके नाम से स्टेडियम बना है, इन्होंने हिंदुस्तान के लिए 1952 में हेलसिंकी में हॉकी का स्वर्ण पदक वर्ल्ड कप में जीता। तो इसी के कारण मुझे A.N. झा और स्टीवेंसन साहब, दोनों लोग मुझे बहुत लाइक करते थे। और इंटरमीडिएट करने के बाद ही उन्होंने कहा, तुम BA प्राइवेट कर लेना या इवनिंग क्लासेस में कर लेना। मुझे नौकरी दे दी, सरकारी नौकरी। सिर्फ एक सफ़ेद कागज में एप्लीकेशन लिख के चीफ सेक्रेटरी का देना बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
ये चेतन चौहान जिनकी हाल में मृत्यु हुई, मैं ये और पाराशाती शर्मा इंडिया का टेस्ट क्रिकेटर ओपनिंग करता था। हम लोग लखनऊ में मैच देख रहे थे तो कपिल देव हरियाणा कोर्ट से खेलने आया था। तो पाराशाती भाई मुझसे बोले, तिवारी, आज है नहीं वो, तिवारी ये जो लड़का बॉलिंग कर रहा है कपिल, ये हिंदुस्तान की तरफ से एक दिन जरूर खेलेगा। और 6 महीने के अंदर वो सेलेक्ट हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ उसने अच्छी गेंदबाजी की और फिर भारत का कप्तान बना और फिर भारत में वर्ल्ड कप जीत के कपिल देव लाए। तो क्रिकेट मेरा बहुत ही प्यारा गेम था। आज भी अगर क्रिकेट मैच होता है, बल्कि पंतनगर में भी मैंने बहुत लड़कों को क्रिकेट में सिखाया है। आज जो डिफरेंट जगह जनरल मैनेजर हैं, डॉक्टर रामेंद्र सिंह जो फर्टिलाइज़र के में बिरला ग्रुप में थे, और भी बहुत से, सब मुझे कहते हैं, डॉक्टर जी.के. गर्ग, गुड बायोकेमिस्ट, वो कहते हैं आप तो हमारे क्रिकेट के गुरु थे, आपने हमको संसार में बॉलिंग करना सिखाया था। तो ये सब चलता है और मैं बहुत ही, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे पंतनगर ऐसी जगह में काम करने को दिया। किसी भी व्यक्ति के लिए पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पंतनगर के पहले कुलपति, तो लिसनर्स आप ये तो जान ही गए होंगे कि केसी तिवारी सर हमारे पहले कुलपति श्री के.पी. स्टीवेंसन के ओएसडी रहे हैं और उनके साथ इन्होंने 4 साल बड़ी तन्मयता से, बड़ी क्लोजली काम किया है। तो सर हम ये जानना अवश्य चाहेंगे और पब्लिक भी कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है कि स्टीवेंसन साहब को, जिनके बारे में हमने केवल पढ़ा है, लेकिन आज पहली बार मौका मिल रहा है कि हम उनसे जानें जिन्होंने उनके साथ काम भी किया है। तो सर हमें कुछ बताएं उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, काम करने के वर्क कल्चर के बारे में, सो दैट वी कैन नो कि हाँ वो कैरेक्टर पंतनगर में कहाँ से आना शुरू हुआ था। सर केनेथ एंथनी पैट्रिक स्टीवेंसन अगर पंतनगर में प्रथम वाइस चांसलर न होते तो ये यूनिवर्सिटी खुल के बंद हो जाती। उनका व्यवहार बच्चों के संग, उनका व्यवहार अध्यापकों के संग, उनका व्यवहार कर्मचारियों के संग इतना अच्छा था। वो सबको अपना मानते थे, वो भेदभाव नहीं करते थे। अब मैं बताऊं कि हॉस्टल में जाके वो बच्चों के संग, डॉक्टर हरपाल सिंह, डॉक्टर जी.के. गर्ग जो डीन रिटायर हुए, ये जब स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर के, इनके संग बैठ के कहते थे हम रोटी चावल खाएगा, भारत को बनाएगा। एक एंग्लो इंडियन होने के बाद भी उनको देशभक्ति का बड़ा ही वो आनंद लेते थे। वो कहते थे आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों के यहाँ 3 जलवायु होती हैं, आप लोगों के यहाँ हर सुविधा है। और आज मुझे याद आ रहा है कि 1962 में जब ये चाइनीज वॉर हुई तो स्टीवेंसन साहब ओपन जीप में, क्योंकि वो IAS 48 बैच के थे वार सर्विसेज से, तो अपनी पुरानी मिलिट्री की पोशाक पहन के, और वैसे ही उनका ड्राइवर ड्यूक ड्राइवर था, और जितने लड़के और कर्मचारी थे उनको मार्च कराना कंट्री के लिए, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। आज वो दिन 1962 का मुझे याद आ रहा है। और कभी कोई चीज में खाना हो, रहना हो, और हाँ, झूठ से वो नफरत करते थे। वो कहते हैं कोई भी काम करो, गलती इंसान से होती है, गलती हो जाए तो उसको कह दो,
और उसको ठीक कर लो। अगर कोई गलती को ठीक कर लेता है तो वो गलती नहीं कहा जाता। तो इसलिए अच्छा, फ्रैंकनेस में, हालांकि ये कहने में मुझे हिचक नहीं हो रही है, अगर आप कभी उनके यहाँ जाइए तो वो पूछ लेते थे कि भाई हमारी सिगरेट है, सिगरेट पियोगे? पी सकते हो। उसमें कोई भेदभाव नहीं कि हम बड़े बाबू हैं, वो वाइस चांसलर हैं। लेकिन काम लेने में वो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। ऑफिस आने का सुबह हम लोगों का टाइम 9 बजे था, लेकिन शुरू में जाने का कोई टाइम नहीं होता था। कभी 7 भी बजता था, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी थी। और मैं तो, और यहाँ के जितने पुराने लोग हैं, जितनों ने किताबें लिखी हैं, उसमें सर्वप्रथम गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम, फिर स्टीवेंसन साहब का नाम, ध्यानपाल सिंह साहब का नाम हर एक जगह है। और स्टीवेंसन आज के दिन, आई एम नाउ 86, आई से स्टीव वॉज ग्रेट, स्टीव वॉज ग्रेट, स्टीव वॉज ग्रेट। थोड़ा सा हिस्ट्री से निकल के वर्तमान में आते हैं और आपसे सर ये जानने की कोशिश रहेगी कि पंतनगर विश्वविद्यालय को, सरकार को एवं एलुमनाई को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि पंतनगर अपनी पुराने गोल्डन डेज को प्राप्त करे, एक बार फिर से उसकी पताका पूरे विश्व में लहराए और भारत की जो समस्याएं अभी चल रही हैं, जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक बार पुनः सॉल्व करे। सच में आज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पंतनगर की छवि को अच्छे करने के लिए मैं अपनी उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो हमारी भरपूरक मदद करें। मुझे मालूम है सरकार के पास सिर्फ पंतनगर ही नहीं, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी कारखाने हैं, और भी संस्थाएं हैं, लेकिन पंतनगर जो कि उत्तराखंड के लिए ऐसा है जैसे भारत के लिए ताजमहल, जो उत्तराखंड में आएगा वो पंतनगर जरूर आएगा। पंतनगर की छवि और अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है पहले से हम नीचे उतरे हैं, जो चढ़ता है वो गिरता है, और जो गिरता है वो फिर चढ़ने की कोशिश करे तो फिर सिरे पे पहुंच जाता है। तो मैं तो अपने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री उनियाल साहब से और सचिव साहब से ये निवेदन करूंगा कि पंतनगर की डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड होती है। मैं कह रहा हूं कि पंतनगर इज एन autonomous body, but the autonomy is not there. Even today, we want to appoint a chaprasi, a peon. We have to take the approval of government. And in my opinion, it is not correct. The Vice Chancellor is a big scientist, and we have got our own organization, that is Pantnagar University Administration. If there is some policy matter, it should go to the Board of Management, then it may go to the government. But small things, maintenance grant, the roads, I tell you, I go for morning walk, the roads are not as good as it were many years back. The sanitation is not good. The nalas, they are not good because the maintenance grant is 1/4. I will not say Vice Chancellor is trying his level best to keep the university up to date, but बिना पैसे के काम नहीं होता। तो मैं तो निवेदन ही करूंगा सरकार से कि पंतनगर एक बहुत ऐसी संस्था है जो उत्तराखंड का नाम करती है। सरकार से निवेदन है
कि वो पंतनगर को एक ऊंची संस्था समझ के, जो कि दिन रात रिसर्च के काम में जुटी है। यहाँ पे लोग आते हैं और दुनिया भर के लोग आते हैं, देखते हैं कि ये विश्वविद्यालय नए नए किस्म के बीज पैदा कर रहा है, नई नई रिसर्च कर रहा है, नई सब्जियां, लेकिन इन अध्यापक वगैरह के बारे में आगे सोचना, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये कुलपति कर रहे हैं, कुलपति पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस पर ध्यान दे। पंतनगर बनाना आसान नहीं है। आप 100 साल मेहनत करिए, पंतनगर नहीं बना सकते। लेकिन अगर पंतनगर बनाना है तो मेहनत करना है। तो आपके को प्रोजेक्ट लाने हैं, आपको लोगों से संबंध बढ़ाने हैं। अभी हाल में हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें कुछ टीचर और कुछ लोग बाहर भेजे जाएंगे और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट आप लाइए। आप जितने भी पंतनगर में विद्यार्थी विदेश में हैं, उनसे कहिए कि आप अपने विश्वविद्यालय को ऊपर उठाएं। जैसे आज ऑक्सफोर्ड का नाम है, आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, 2 ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं। अमेरिका में आप देखिए, कैलिफोर्निया चले जाइए, न्यूयॉर्क चले जाइए, ह्यूस्टन में सबसे बड़ा कैंसर का, हार्ट का सबसे बड़ा हार्ट का इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही अपने लोगों को एग्रीकल्चर में, पंतनगर में, अगर हम इन सब बच्चों को आगे बटोरें, इन सब बच्चों को जो आज कोई 70 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 80 साल का है। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह, हमें याद है, he has got a farm in US of 80 acres. He is a student of this university. We should just tell all those guys to help us. And if they help us, the government will help us. कभी एकांत में ऐसे पल अवश्य याद आते होंगे, मेरा ऐसा मानना है, जिनको आपने पंतनगर को बनाते देखा होगा। वो डिफाइनिंग मोमेंट्स कैसे याद करते हैं सर उनको आप? ये सन 60 का युग है। इस युग में नोबेल प्राइज विजेता अमेरिका के नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर स्वामीनाथन, ऐसे महान साइंटिस्टों ने जब तराई में और पंतनगर में देखा कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है और यहाँ वाले वही पुरानी सिस्टम से गेहूं बो रहे हैं, तो जो नया बीज पहली दफे आया, लरमा राहो सुनेरा 64, ये बोनी जात ड्वार्फ वैरायटी कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया और पूसा में भी टेस्ट हुआ। और हम लोगों ने जब आपको इसके पहले एक चीज और बता दें कि नॉर्मल ई बोरलॉग 1 नहीं 2 नहीं 4 बार पंतनगर आए। एक नोबेल प्राइज होल्डर का 4 बार पंतनगर में आना, और पंतनगर ही नहीं, पंतनगर संबंधित तराई, क्योंकि पंतनगर में तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंतनगर, इसका बीज पूरे भारत में ही नहीं, नेपाल में, अफ्रीका में, श्रीलंका में, हर जगह जाता था। किंग महेंद्रा यहाँ से अपने हवाई जहाज में, किंग महेंद्रा जब थे नेपाल के राजा, वो बीज ले गए। यहाँ से बीज जो है पाकिस्तान को, यहाँ से बीज मलेशिया को, हर जगह बीज जाता रहता था। पंतनगर का बीज इतना अच्छा हो गया था कि लोग नेशनल सीड कॉरपोरेशन को भूल गए थे।
पंतनगर का बीज आज भी, जब पंतनगर में किसान मेला लगता है तो पंतनगर का बीज हजारों किसान, जिसको कि हम एक कृषि कुंभ के नाम से जानते हैं, पूरे दुनिया भर से किसान लोग आते हैं और पंतनगर का बीज ले जाते हैं। पंतनगर बीज के मामले में, पढ़ाई के मामले में और सभ्यता के मामले में पंतनगर एक ऐसी जगह है, मेरे ख्याल से एक स्वर्ग है। यहाँ पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे लोगों का आपस में व्यवहार बहुत अच्छा है। लोग एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। यहाँ पे प्राध्यापक, अध्यापक, जितने भी कर्मचारी, अधिकारी है, एक दूसरे की भावनाओं से परिचित हैं। अब इसके अलावा पंतनगर में जाति पाति का कोई भी विषय नहीं है। यहाँ हम एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। इसी कारण पंतनगर उन्नति कर पाया। यूनिवर्सिटी में आपके रहे सहकर्मी, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट्स एवं जो लेबर्स थे यहाँ के, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या सर आप? अगर उनमें से कुछ नाम भी आप ले सकें तो लिसनर्स को पंतनगर के शुरुआती दिनों में वापस जाने का एक और अवसर मिल जाएगा। हम पंतनगर में उन लोगों को याद करेंगे जिनकी वजह से इसका नाम पंतनगर पड़ा और उन्होंने पंतनगर को एक बहुत ही बढ़िया ऐसा नाम दिया कि पंतनगर का नाम विश्व में फेमस हुआ। सबसे पहले मैं नमन करूंगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को, जिनके वजह से ये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई। अगर हम मेजर संधू, आदित्यनाथ झा और बहुत से लोग, यहाँ के जितने कुलपति रहे हैं और जो कुलपति हैं, स्टीवेंसन साहब, राजा भद्री, आनंद स्वरूप, पीएल गौतम, एनएस माथुर और भी बहुत, कृपा नारायण जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थे, बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने यहाँ पे काम किया। मैं अपनी ड्यूटी में फेल हूँगा अगर मैं डॉक्टर अनंत राव, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर गोलाकोटा, डॉक्टर रामन, डॉक्टर रमन और भी बहुत से डीन, डायरेक्टर हैं। मैं डॉक्टर हरपाल सिंह, डॉक्टर जी.के. गर्ग, ये सब स्टूडेंट्स थे, लेकिन बाद में फिर ये प्राध्यापक और डीन बने। डॉक्टर लक्चोरा और भी बहुत से, डॉक्टर बेनीवाल जो अब भी एग्रो फाउंडेशन में है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। 75 साल के, 70-75 के बीच में इनकी उम्र है, लेकिन अब भी ये खेतों में किसानों से मिलने जाते हैं। यहाँ पे अंत में मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने वर्कर थे जो सन 60 में आए थे और जिन्होंने अपना जीवन की अंतिम सांस भी यहाँ ली, आज मैं उन सबको नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पंतनगर एक दिन फिर खिलेगा। हम लोग मेहनत करेंगे, यहाँ के अध्यापक अच्छे, प्राध्यापक अच्छे, यहाँ के कुलपति मेहनती, यहाँ सब अच्छे हैं। बस सिर्फ हमको थोड़ा सा ये कहना जरूर होगा कि हमको जो चीज़ें चाहिए, अगर समय पे वो चीज़ें मिल जाए तो पंतनगर और भी फिर से चोटी पे पहुंच जाएगा। सर, जब हमने स्टार्स ऑफ पंतनगर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी तो एक ही उद्देश्य था
कि पुरानी विजडम को न्यू एनर्जी से मिलवाना और इससे एक स्पिन ऑफ स्टार्टअप्स में आना, लोगों की हेल्प करना एंड इंक्यूबेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ता देखना। तो सर हमारी टीम, हमारे स्पॉन्सर्स एंडॉइन बिजनेस ग्रुप ने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से ये प्लेटफॉर्म बनाया है एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। और हम सभी चाहते हैं कि हमें गाइडेंस उनसे मिले जिन्होंने पन्नागर का साथ दिया है। तो सर हमारा आप मार्गदर्शन करें और स्वेच्छानुसार आशीष भी प्रदान करें, प्लीज सर। By Nitin bhai, I am very grateful to you because you came over here and we had discussions for about an hour. One thing, if you can get in touch with Pantnagarians, meet them. 1 + 1 = 2 and 1 1 1 is equal to 111 and so on, it goes to millions. तो मेरा तो आपकी संस्था से और आपके जो चेयरमैन है श्रीश साहब, श्रीश, उनको मेरा नमस्कार। और मैं इस माध्यम, इस मीडियम के थ्रू, मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि पंतनगर को अपना समझ के अगर यहाँ के विद्यार्थी अपने यहाँ का आईडी नंबर, एक ज़माने में 139 136 होता था, आज हजारों में है। और अगर इतने लोग पंतनगर को मदद करेंगे तो पंतनगर बहुत ही ऊंची संस्था होगी। संसार में कहीं भी कोई भी जब पूरे दिल से इस विश्व पे एक कोई आकृति उकेरता है, अपने प्रयासों से देश को संवारता है, तो ऐसा संभव है कि उसकी आंखें छलक आए जब कभी भी उसकी बात हो। श्री केसी तिवारी जी ने अपना पूरा जीवन पन्नागर को अर्पित किया है और आज जब हम उनसे बात कर रहे थे तो आपने देखा कि स्टार्टेड क्राइंग और हमें ये देखते हुए थोड़ा सुकून भी था कि इन आंखों में, इन हाथों में और इस दिल में आज भी पन्नागर के लिए वही प्यार है और ये हमको बहुत कुछ सिखा भी रहा है कि आप जो भी काम करें लाइफ में उसको पूरे दिल से करें, वरना मत करें। और अगर आप पूरे दिल से कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। जैसे पन्नागर में इतने सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, क्या प्रोफेसर, क्या डीन, क्या DSWs रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के लेबर्स जिनको हम कभी जान ही नहीं पाएंगे उनके नाम, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने अपने पूरे जीवन को लगाया है और उस छोटे 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 कतरों से मिलकर पन्नागर की ब्रांड बनी है। और आज जब पन्नागर का ग्रेजुएट कहीं खड़ा होता है तो आप सभी जानते हैं कि उसको हाथों हाथ लिया जाता है। तो उसके पीछे के जो छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे कण हैं और स्टार्स ऑफ पन्नागर में हमारी यही कोशिश है कि इन छोटे छोटे कणों को एलुमनाई के साथ साथ लाया जाए, उनसे सीखा जाए, उनकी लाइफ स्टोरी, जर्नी शेयर की जाए और उनको भी एक संबल प्रदान किया जाए कि हाँ, वी आर विद यू। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमने ये डिसाइड किया है कि हर तीसरे या चौथे एपिसोड में हम एक ऐसे उस छोटे से पार्टिकल को लेके आएंगे पन्नागर के, उनका जो रोल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और हम ये आशा करते हैं कि आपके सर्कल में, आपकी नज़र में कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा हीरो, कोई ऐसा स्टार हो तो प्लीज़ हमारी ईमेल आईडी पे हमसे कनेक्ट करें, हमको बताएं एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे उनको इज्जत दें। दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स हमको मिलते रहते हैं और हम सारे मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ते हैं एंड यथासंभव रिप्लाई भी करते हैं और इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 4.5 महीने के अंदर हमारा जो पॉडकास्ट है वो 1 लाख से भी ज़्यादा बार सुना जा चुका है, करीब 19 देशों में। और इसकी जो एवरेज एक व्यूअरशिप आ रही है
वो विद इन 10 to 15 डेज वो 4,000 से 5,000 व्यूअरशिप आती है. दैट्स ओनली ऑन फेसबुक. जबकि ये पॉडकास्ट अमेजन पे है, आईट्यून्स पे है, सावन पे है, स्पॉटिफाई पे है, गाना पे है. उसको काउंट नहीं हम करते हैं, हम केवल अभी फेसबुक की बात कर रहे हैं. सो दोस्तों, अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव में एसोसिएट होना चाहते हैं या हमको मदद करना चाहते हैं या स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो मैं आप सबका एडवांस में थैंक यू बोलता हूं. और आप हमसे जुड़ सकते हैं starsofpantnagar@gmail.com. विदाउट स्पेस होगा, starsofpantnagar@gmail.com. We thank our title sponsor, Indoin Business Group, for making this podcast possible. तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमें ये आशा है कि आप इसी तरह अपना प्यार हमको देते रहेंगे. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय. टिल देन, कीप शाइनिंग.